Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. Now we will start revision of lesson number 4, division and unitary method. So student, before starting our today's topic, first we will see what you had learned our last classes. So student, all of you know very well what you had learned our last classes. First we had learned about the recall. Okay, now look at here one example. 48 divided by 5 equal to 9. 9 is the quotient and 3 is the remainder. That 48 is called dividend, that 5 is called divisor, 9 is called quotient, and whatever is the balance, this is called remainder. Okay, so this is recall. Then after we had learned the property of division. So student, what is the property of division? First property of division, this is the relationship between the multiplication and division. Look at here, 7 into 6 equal to 42. 7 into 6 equal to 42. 7 and 6, they both are the factor of the 42. 7 and 6 is both are the factor of 42. So when we are taking whatever is the coming product is the 42 we will be divided by one factors, means 6. 42 divided by 6, so we will get another factor, means 7. Now look at here, 42 that divide in the next factor 7, so we will get another factor is the 6, means 42 divided by 7 equal to 6. This is the property number 1. Then next property number, when we are multiply 1 in any, when we are divided by 1 in any number, what? When we are divide 1 in any number, so we will get answer itself number. When we are divided 1 in any number, we will get answer itself number. This is property number 2. Then property number 3, when we are divide itself number, what? When we are divided itself number, we will get quotient is the 1. When we are divided 1 in any number, so we will get quotient is the 1. Now property number 4, when we are divided 0 in any number. When we are divided 0 in any number, we will get answer is the 0. Okay, so this is the property of division. Then after we had learned the division of 4-digit number by 1-digit number. Then we had learned division by a 2-digit number, estimating quotient. Okay. Then we had learned up to the exercise 4.4, question number A and B we had done in our last period. Now question number C we will be see. Now look at here, 7,183 divided by 46. 7,183 divided by 46. Now look at here, 46 and 7,183, this is the big number, so we will take first the rounded value. So now look at here how to do this one. So what is the example number 1? Example number 1 is the 7,183 divided by 46. Okay, now look at here, 46 is the 2-digit number, so we will take 71. Now 46 rounded value is the 50 and 71 rounded value is the 71 is the rounded value is the 70. So 0 is cutting. Okay, so how? 7 divided by 5, 5 divided by 7, how much getting? 5 ones are 5. So 7 minus 5, 2. So how much coming? 1. So we are getting 1. Now 46 into 2 we will be check our answer is coming or not. ठीक है, 41 हमें कितना मिल गया यहाँ पे? क्वोशंट 1 मिल गया है. ठीक है, अभी हम और एक 1 नंबर लेके हम चेक करेंगे कि वो 71 से छोटा आता है क्या. ठीक है, तो 2 6 12, 1 is the carry, 2 4 8
एंड 1 प्लस 1 92। सो 92 आ गया, तो 92 71 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या लेंगे 41 1 सॉरी 46 1 46 46 1 46। नाउ 11 माइनस 6 क्योंकि ये 1 छोटा है तो हम यहाँ पे 11 लिख देंगे। 11 माइनस 6 इज़ द 5 और 6 माइनस 4, 6 में से 4 गया, कितना बच गया 2 बच गया। हाउ मच कमिंग 2। नाउ हियर ब्रिंग आउट 8 4। Now which is the number is coming here 258 and here 46। 46 की राउंडेड वैल्यू क्या है, ऑलरेडी 50 है। नाउ 258 की राउंडेड वैल्यू क्या होगी, राउंडेड वैल्यू इसकी कितनी होगी 300 होगी, ठीक है। और यहाँ पे कितनी है 50 है, तो 0 0 इज कैंसल। नाउ 5 1 5 5 6 30। सो हम 46 को कितने 6 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 6 6 36, 3 इज द कैरी, 6 4 24, 24 प्लस 3 27, कितना आ गया 27 आ गया है, ठीक है। तो नाउ 276 ये क्या है 258 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 46 मल्टीप्लाई बाय 5 करके देखेंगे, ठीक है। 6 5 30, सो 0 इज राइटिंग हियर और 3 इज कैरी। 5 4 20, 20 प्लस 3 33, 20 प्लस 3 कितना हो गया 23 हो गया, कितना आ गया 230 आ गया। तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और 230 लिखेंगे। नाउ 8 माइनस 0 8, 5 minus 3 2 and 2 minus 2 0। नाउ ब्रिंग आउट दिस 3। अभी देखो यहाँ पे ये वाला 276 283 के नियरेस्ट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 और यहाँ पे लिख देंगे 276। सो कितना हो गया 13 माइनस 6 कितना होगा 7 होगा। यहाँ पे 7 है तो 7 माइनस 7 0 एंड यहाँ पे 2 माइनस 2 0। तो हमें कितना मिल गया है, हमें क्वोशंट मिल गया है 156 एंड रिमाइंडर हमें मिल गया है 7, ठीक है। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2। व्हाट इज द एग्जाम्पल नंबर 2? 2903 divided by 27। 2903 divided by 27। Now look at here. Now we will write here 27 divided by 2903। Now look at here that 27 and 20 is 29 nearest value 27. So now first we will write here 1 and 27 minus 29 2. Now bring down 0. 0 is not divided, so we will write here 0 and now we will take out 3. So now which is the value 203, okay. And now 27, so 27 nearest value is 30, okay. And what is the nearest value of 203? 200. So now 0 0 is cancelled. So 3 1s are 3, 3 6 are 18. So we will check 27 into 8. 7 into 8 56. Then 5 is the carry. 8 2s are 16. 16 plus 5 21. So now 8 is the bigger value. So 27 into 7 we will be check. 7 into 7 49. So 9 is writing here. 4 is the carry. 4 7 into 2 14. 14 plus 4 14 plus 1 14 plus 14 plus 4 18. So how much coming 189. So we will write here 7 and here writing 189. 189 203 minus 189. Now
3 minus 9. 3 minus 9 is possible? No. So we'll write here 13. 13 minus 9, how much? 2. How much getting? 2. 2 or 4? Here is the 4, not 2. Now here is the 9. 9 minus 8, 1. So what is 14? And यहाँ पे 1 minus 1, 0. So how much getting? Quotient equal to 107 and remainder equal to 14. Quotient equal to 107 and remainder equal to 14. So this is example number 2. Now look at here example number. Now we will solve example number 3. So now look at here example number 3. 6792 divided by 38. 6792 divided by 38. So now we will do 6792 divided by 38. 6792 divided by 38. Now 67 and here is the 38. Okay, so now 38 rounded value is the 40 and 67 rounded value is the 70. Okay, so 0 0 is cancelled. So 4 ones are 4 and 4 twos are 8. So we will write here cutting the 1. So 38 into 1. How much getting? 38. Now we will check one number. 38 into 2 करके देखेंगे. ठीक है, अगर 38 into 2 ये जो नंबर है वो 67 से छोटा है तो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे. अगर ये 2 से बड़ा हो, मतलब 67 ये 38 2 से करने के बाद बड़ा होगा तो हम नहीं लेंगे. 2 into 8 16. 1 is the carry. Now 2 into 3 6 and here is the 76 आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? 1 लेंगे और यहाँ पे 38 लेंगे. ठीक है, नाउ 17 minus 8 9 and यहाँ पे 5 हो गया. 5 minus 3 कितना होगा? 2 होगा. ठीक है, नाउ 29 we will bring down 9. यहाँ पे क्या हो गया? 299 हो गया. ठीक है, नाउ 38 की राउंडेड वैल्यू क्या होगी? 40 होगी और 299 की राउंडेड वैल्यू क्या होगी? 300 होगी. 0 0 कैंसल. सो 4 के टेबल में 30 आता है क्या? नहीं आता है. व्हाट इज़ द नियरेस्ट वैल्यू? नियरेस्ट वैल्यू इज़ द 28. 28 वेयर इन द 7. ठीक है, सो नाउ वी विल चेक. ओके, कि 38 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 299 से छोटा नंबर आता है क्या? चेक करेंगे. ठीक है, 38 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 7 करेंगे. ठीक है, 8 into 7. 8 into 7 how much? 8 into 7 56. So we will write here 6 and 5 is the carry. 7 into 3. 7 into 3 21. 21 plus 5 21 plus 5 26. कितना आ गया? 266. नाउ 38 मल्टीप्लाई बाय 8 करके देखेंगे. 8 into 8 64. 4 is writing here and 6 is the carry. 8 into 3 24. 24 plus 6 30. सो ये 304 आ गया. 304 क्या है? 299 से बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ पे 266 लिख देंगे. 9 minus 6 3. 9 minus 6 3. 2 minus 2 0. नाउ ब्रिंग आउट 2 को ब्रिंग आउट करेंगे. ठीक है, अभी क्या है? 304 है 8 के प्लेस में. ठीक है, अगर हम 38 इसमें 9 लेंगे तो कितना आएगा? ये 304 प्लस 38 कितना हो गया? 12. 342 आ गया. तो ये हमारा ये 9th वाली प्लेस वाली वैल्यू है तो ये बड़ी है तो हम क्या करेंगे? 304 लेंगे. 304 कौन से प्लेस पे है? 8 प्लेस. तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे और यहाँ पे 304 लिख देंगे. नाउ 12 minus 4 8 होगा और यहाँ पे 2 और 0. सो हमारा
क्वेश्चन कितना आ गया है 178 और रिमाइंडर कितना हो गया है 28. ओके, सो हाउ मच क्वेश्चन 178 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 28. So this is example number 3. Now all are the same. Now I am solving example number 13. ठीक है, all example क्या है same है like that. Example 13 I will solve here 13 and then 14. What is the example number 13? 6,561 divided by 81. 6,561 divided by 81. So now look at here, 65 is the less than 81. तो हम क्या लेंगे 656 लेंगे क्योंकि 65 क्या है 81 से लेस है. नाउ लुक एट हियर 81 राउंडेड वैल्यू क्या होगी 80 होगी. 656 की राउंडेड वैल्यू क्या होगी 700 होगी. ठीक है, 0 0 कैंसल. व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू, यहाँ पे 8 1 सा 8 का 64 नियरेस्ट वैल्यू होगी. ठीक है, सो नाउ विल ट्राई 81 इंटू 8 करके देखेंगे तो कितना आता है. 8 1 सा 8 एंड 88 8 इन सा 64. तो यहाँ पे क्या आ गया 648. 656 के नियरेस्ट वैल्यू है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे. 648 लिख देंगे. ठीक है, नाउ लुक एट हियर 16 माइनस 8 क्योंकि 6 है 8 से छोटा है तो हम क्या करेंगे यहाँ से कैरी लेंगे. तो 16 माइनस 8 कितना हो गया वो 8 हो गया. 4 माइनस 4 0 और यहाँ पे 6 माइनस 6 0. नाउ ब्रिंग आउट 1. ठीक है, नाउ क्या आ गया 81 आ गया. 81 1 सा 81. सो यहाँ पे क्या आ गया है 0. सो हमारा क्वेश्चन कितना है 81 है और रिमाइंडर इक्वल टू 0 है. ओके, नाउ look at here example number 14. What is the example number 14? 3089 divided by 16. 3089 divided by 60. 3089. सबको 18 का टेबल आता ही होगा. 18 2 सा स्टूडेंट व्हाट इज द 18 2 सा 36 बट हियर इज द 30. सो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे 18 लिख देंगे. ठीक है, नाउ 0 माइनस 8 होगा क्या नहीं. सो 10 माइनस 8 कितना हो गया 2 हो गया और यहाँ पे 2 माइनस 1 1. नाउ 12 हो गया. अभी ब्रिंग आउट 8 करेंगे 128. सो in the 18 tables 128 present, no. What is the nearest value? Nearest value is the 126 and 126 is present in the 7 table. So हम यहाँ पे 7 लिख देंगे और यहाँ पे 126 लिख देंगे. 8 minus 6 2, then 2 minus 2 0 1 minus 1 0. Now bring down 19 9. So which is value 9 bring out. So which is value is coming 29. Now 18 2s are 36. So that 29 we will write here 1 writing और यहाँ पे हम 18 लिख देंगे क्योंकि 18 2 का 36 होता है और 36 29 से बड़ा है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 18 लिख देंगे. 9 minus 1 9 minus 8 1 and 2 minus 1 1. So how much getting 11. Quotient equal to 171 and remainder equal to 11. Remainder equal to 11. So this is example number 14. Okay, that all example is same like that. So this you solve. Okay, already we have done our last class. Now look at here question number D. Filling the blanks to make the sentence true. हमें क्या करना है फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है.
यहाँ पे क्या है 936 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक से गिवन द क्वेश्चन 104 एंड रिमाइंडर इज द 0। हमें क्या दिया है, ये हमारा डिविडेंड है और क्वेश्चन दिया है और रिमाइंडर दिया है। हमें क्या निकालना है, डिवाइज़र निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, सो अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स, जब हमारे पास डिविडेंड दिया रहता है, क्वेश्चन रहता है और रिमाइंडर रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, तब हमारा जो क्या रहता है, डिविडेंड रहता है, उसको हम डिवाइड करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्या करते हैं, क्वेश्चन के साथ डिवाइड करते हैं। तो अगर हम 104 को डिवाइड करते हैं 936 से, किससे, 936 से, सो 104 की नियरेस्ट वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी, और 936 की नियरेस्ट वैल्यू कितनी होगी, 900 होगी। तो 0 0 इस कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 हो गया। तो 104 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। 9 4 सा 36, तो 6 इज राइटिंग है, 3 इज द कैरी, 0 इंटू 9, 0 0 प्लस 3 हो गया, 9 इंटू 1 9, सो कितना आ गया, 936 आ गया। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 9 आ गया। 936 को हम 9 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन कितना मिलता है, 104 एंड रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिलता है। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे हमें डिविडेंड निकालना है, डिवाइज़र दिया है, क्वेश्चन दिया है और रिमाइंडर दिया है। तो जब हमारे पास क्या रहता है, डिवाइज़र रहता है, क्वेश्चन रहता है, तो रिमाइंडर रहता है, तो हम क्या करते हैं, हमारा डिवाइज़र है उसको मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखो उल्टा है, अगर हमें डिविडेंड दिया है, क्वेश्चन दिया है, डिवाइज़र निकालना है, तो हम डिविडेंड को डिवाइड करते हैं क्वेश्चन के साथ और रिमाइंडर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन हमें क्या दिया है, डिवाइज़र दिया है, क्वेश्चन दिया है, रिमाइंडर दिया है, हमें क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है। तो हम अभी जो हमारा डिवाइज़र है उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन के साथ, तो 23 इंटू 15 करेंगे। 23 इंटू 15 कितना हो गया, 23 इंटू 15, 5 इंटू 3 15, 1 is the carry, 5 into 2 10, 10 plus 1 11. Now we will write here 0 because 1 is the place of 10. 1 into 3 3 and 1 into 2 2, so 5 4 और यहाँ पे कितना हो गया 3, ठीक है, 345। उसमें हम ऐड करेंगे हमारा रिमाइंडर 5 को, तो क्या होगा 5 + 5 0 1 5 और यहाँ पे 3, सो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 350। सो हमारा डिविडेंड कितना आ गया है 350 डिवाइडेड बाय 23 करेंगे तो हमें क्वेश्चन कितना मिलता है 15 मिलता है और हमें रिमाइंडर कितना मिलता है 5 मिलता है। ओके, नाउ लुक एट हियर 1022 डिवाइडेड बाय 44 करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 आया है, तो हमारा क्वेश्चन कितना आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करके देखेंगे 14 डिवाइडेड बाय 122। Now 10 is the less than 14, so we will take 102. Now in the 14th table 102 is present. No, what is the nearest value? Nearest value is the, look at here, this is the 14 table. Okay, 14 के टेबल में 102 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। सो व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू 98 is present in the 98 is present in the place of 7, so we'll write here 7 और यहाँ पे हम 98 लिख देंगे, ठीक है। नाउ 12 - 8 कितना हो गया 12 - 8 इज द 4, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या हो गया 9 - 9 0 हो गया क्योंकि हमने यहाँ से कैरी लिया था और यहाँ पे अभी नाउ 2 को हम ब्रिंग आउट कर देंगे 42 हो गया। नाउ लुक एट हियर 14 टेबल, 14 के टेबल में 42 आता है, यस इन द प्लेस ऑफ 3, सो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे 42 लिख
42 माइनस 42 0। सो हमें कितना मिल गया है क्वेश्चन 73। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 73 लिख देंगे। नाउ लुक एट हियर 1932 डिवाइडेड बाय 31। 1932 डिवाइडेड बाय 31 हम इसको करके देखेंगे। हमें क्वेश्चन तो रिमाइंडर दोनों भी निकालना है। 1932 divided by 31. So now 19 is the less than 31. So we will take 193. Now 31 की राउंडेड वैल्यू कितनी होगी 30 होगी और 193 की राउंडेड वैल्यू कितनी होगी 200 होगी। 0 0 इज कैंसल। ओके सो 3 के टेबल में 20 आता है क्या नहीं आता है। व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू 18। 18 इज द प्लेस ऑफ 6। तो क्या हो गया 3 1 सा 3। तो हम क्या करेंगे 31 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है 6 1 सा 6 6 3 सा 18 कितना आ गया 186। तो 186 193 के नियरेस्ट वैल्यू है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 6 लिख देंगे और यहाँ पे 186 लिखेंगे। ठीक है 13 माइनस 6 7 और यहाँ पे 8 माइनस 8 0 और 1 माइनस 1 0। नाउ 2 को ब्रिंग आउट करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया 31 डिवाइडेड बाय 72 करना है। सो 31 इंटू 2 करके देखेंगे क्योंकि यहाँ पे 72 है। सो 1 इंटू 2 2 एंड 2 इंटू 2 3 6। तो क्या हो गया 62 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा 62 72 के नियरेस्ट हो गया। अगर 31 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 3 1 सा 3 3 3 3 सा 3 9 93 है के 93 ये बड़ा है 62 से। हम क्या लेंगे 62 कहाँ पे है 2 वाले प्लेस पे। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 62। 72 माइनस 62 कितना हो गया 10 हो गया। सो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया 62 और रिमाइंडर कितना आ गया 10। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 62 और यहाँ पे हम लिख देंगे 10। सो दिस इज द exercise 4.4. Okay, so next topic we will see in our next period. I hope all of you nicely understood today's topic. Thank you and have a nice day.